Okay, so good evening to all of you. In Unit 3, we are having the three chapters. One is the set off and carry forward of losses. Second chapter is the clubbing of income. Can you see the screen? Hello? Yes, sir, Hello? visible. Yes, sir. Okay. So clubbing of income. And third one, that is the advanced tax. So these are the three chapters that we are supposed to cover, okay, as a part of your syllabus. Okay. Now, what is this? Whenever we set off and carry forward and clubbing of income. See, once we have learned the there are five heads of income. Okay, five heads of income that you know. Out of the five heads, salary you already have learned in second year BCom. House property that you already have learned in your second year BCom. PGBP we have learned in this semester. Other sources that we have learned in this semester, and capital gain that we will going to learn. Okay, so these are the five heads of income. So initially, whenever I have started this semester, I have explained you the entire format that how to compute the total income and tax liability. So first of all, what is done? Okay, for each head, the taxable income is to be computed. We have learned that how to compute the taxable income of profit and gains of business and profession. We have learned that how to compute the taxable income from other sources. Uh, you also know that how to compute the income from all these other heads also. तो ये पांचों हेड की हमें क्या करना है? We have to find out the taxable income. But this taxable income of all five heads uh, is not subject to tax. Okay. Because see, once you determine the taxable income of each head, okay, income of this each head we have computed, but the total of all five heads is required to be done to find out the gross total income. And from gross total income, certain deduction under section 80C to 80U is available. And from that deduction, once we deduct the deduction, see, total of all five heads is known as what? Gross total income. From that, we are supposed to give the deduction under section 80C to 80U. And once we deduct this deduction from the gross total income, we get the net taxable income. And if this net taxable income is beyond taxable limit, matlab say rupees 2,50,000, beyond taxable limit, then that income is taxable. Now on this, considering the type of person, we will apply the tax rate. We will apply the tax rate and we will calculate the tax liability of the person. Okay. So whenever we determine the tax liability, we see we have to, if we have to learn this, okay, how to determine the tax payable by the person or tax liability of a person. किसी भी person का tax liability calculate करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि उसकी net income क्या है, और net income calculate करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि उसकी gross total income क्या है, और gross total income में से उसने क्या क्या deduction claim किए. तो what is important for us to calculate the gross total income? Now see, whenever we determine the gross total income, okay, generally gross total income is understood in that way that gross total income is nothing. It is the total of taxable income of all five heads. पांचों हेड की taxable income के total को हम gross total income कहते हैं. But see, it is not like so. See, whenever we determine the gross total income, you do not have to do the directly the total of all five heads. But before we do the total of all five heads, we are supposed to make two adjustments, and that two adjustment is what? One is the set off and carry forward of losses, set off and carry forward of losses, and another one is the clubbing of income. So these two activities we are supposed to do once we determine the five heads income. And before we do the total of all five heads, we must have to understand that uh, the concept of set off and carry forward of losses and clubbing of income, and that we are supposed to do first.
and then after consumer, see, if we want to determine the gross total income, see what 7 things we must know. We must know the taxable income of all 5 heads. पांचों हेड की taxable income मुझे पता होनी चाहिए. Plus, I must know that what are the provisions related to the set-off of losses and carry forward of losses, and what are the provisions of clubbing of income. Okay, so we have learned the all 5 heads. Okay, except this capital gain we have learned, और capital gain का भी आपको आइडिया तो है ही. तो ये पांचों हेड के टैक्सेबल इनकम ढूंढने के बाद हमें ये दोनों का भी आइडिया होना जरूरी है. दैट इज अ सेट ऑफ एंड क्लबिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फर्स्ट. Okay, today we will going to discuss both if possible. So set off and carry forward of losses. Okay. Of losses. So this is the chapter that we have to learn. And where it will be useful, okay, after determining all 5 heads income, see, we do not have to just do the total to determine the gross total income, but before that we are supposed to do the set off and carry forward of losses. Now, what is this set off and what is the carry forward? Set off means what? See, whenever we want to determine the gross total income, what we are supposed to do? See, there are 3 kind of adjustments that we are supposed to do. First of all, we are supposed to do the intra-head adjustment. Intra-head adjustment. Okay. Or after intra-head adjustment, if the income is not get set off, we are supposed to do the inter-head adjustment. Inter-head adjustment. And after doing the inter-head adjustment, if still the losses are not get covered, then we are supposed to carry forward the losses. Okay, carry forward the losses. So we are supposed to do 3 activity. Okay, first of all, we are supposed to do the intra-head adjustment. Okay, अगर losses है तो पहले intra-head adjustment से losses को set off करो. अगर intra-head में losses नहीं set off हो पाए तो you go for the inter-head. Okay, inter-head losses adjust करो. और वहां पे भी नहीं हो पाया लॉसेस तो लॉसेस को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करो. नाउ व्हाट इज द इंट्रा हेड? लाइक सपोज समझ लो, देखो आपके 5 हेड है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी और अदर सोर्सेस. इसमें से ये वाला है सैलरी. जनरली इसमें लॉस नहीं होता है. ओके, बहुत रेयर केस में पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि सैलरी में लॉस होता है, और सैलरी में सपोज लॉस हुआ तो दिस लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड. ओके, दैट यू मस्ट नो. ओके, तो सैलरी में जनरली लॉस नहीं होता है. कोई नौकरी करते हो ત્યાં लॉस થાય એવા ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે. ओके, तो अगर आपको सपोज हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, सपोज आपके पास एक हाउस है, हाउस 1, दूसरा हाउस है हाउस 2. ओके, हाउस 1 में आपको 10,000 की इनकम हुई, लेकिन हाउस 2 में आपको 5,000 का लॉस हुआ. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो दैट आई विल गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्ट अगेंस्ट द इनकम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इटसेल्फ. तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट है, 5,000 का लॉस है, तो व्हाट इज माय नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ. तो 10,000 प्रॉफिट माइनस 5,000 लॉस, so my net taxable income from house property is a 5,000. so this is called what? intra-head. हेड के अंदर ही मैंने एडजस्टमेंट किया. ओके, जैसे कैपिटल गेन में 2 ट्रांजेक्शन आपने की, एक में आपको प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, दूसरे में 10,000 का लॉस हुआ है. ओके, तो यहां मैं क्या करूंगा, ये कैपिटल गेन का जो प्रॉफिट है वो मैं कैपिटल लॉस के सामने एडजस्ट करूंगा, और अगर बाकी बचा वो 40,000, दिस इज माय टैक्सेबल कैपिटल गेन. ठीक है, ऐसा अदर सोर्सेस में ऐसा हो सकता है कि अदर सोर्सेस में आपको सपोज गिफ्ट में प्रॉफिट हुआ है, और देखो अदर सोर्सेस में आपने कोई प्रॉपर्टी कुछ किया है, किसी को रेंट पे दिया है, प्लांट मशीनरी, और उसमें लॉस भी हो सकता है. तो एक में प्रॉफिट हुआ, एक में लॉस हुआ, तो इसको अदर सोर्सेस का प्रॉफिट अदर सोर्सेस के लॉस के सामने ही पहले एडजस्ट करना होता है. और एक दूसरे के सामने अगर आप विद इन हेड एडजस्ट करते हो, that is known as what? That is known as intra-head adjustment. That is known as what? Intra-head adjustment. Now see, once you have done the intra-head adjustment, but still there is a losses. Still there is a losses. Like suppose this is a situation कि भाई हाउस प्रॉपर्टी में एक घर में मेरा 10,000 प्रॉफिट है, और दूसरे घर में
मेरे को 20,000 का लॉस है, तो मैंने क्या किया, देखो हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट को हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के सामने एडजस्ट तो किया, लेकिन लॉस इज मोर देन द इनकम। तो यहाँ पे मेरे को क्या हो रहा है, नेट क्या हो रहा है, 10,000 हाउस प्रॉपर्टी लॉस। सो 10,000 हाउस प्रॉपर्टी लॉस है। Now I will not directly carry forward to the next year. What I will do, I will try to adjust with the other head income. कि house property का loss है, can if possible I can adjust with, suppose I am having a business income of 50,000, तो 50,000 बिजनेस इनकम के सामने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट करूंगा। ठीक है, तो मतलब एक हेड का लॉस दूसरे हेड की इनकम के सामने एडजस्ट करना, दैट इज नोन एज इंटर हेड एडजस्टमेंट। ठीक है, दैट इज नोन एज, मतलब एक हेड का लॉस दूसरे हेड की इनकम के सामने एडजस्ट करते हो, दैट इज नोन एज इंटर हेड एडजस्टमेंट। Now once you do the interhead adjustment, see there are certain rules that we are supposed to follow. Okay, that rules we will learn. And even though after doing the interhead adjustment still you are having a loss, then that loss is that you are supposed to carry forward to the next year. ये loss next year में जाएगा और next year की income के सामने adjust होगा. So this is the process of set off of losses. So first of all, what we are supposed to do, intra-head adjustment. Secondly, what we are supposed to do, inter-head adjustment. And thirdly, we are supposed to do carry forward of losses. But see, whenever we do all these exercises, see, it is freely permitted that you can adjust the one head income with the loss, one head's loss with the other head income, other head loss you can carry forward, मतलब within head you can freely do the adjustment. एक हेड का लॉस दूसरी हेड की इनकम के सामने एडजस्ट कर सकते हो, ये सब फ्रीली कर सकते हो। But see, इसमें in the income tax एक certain restrictions are put, certain rules are made. Okay, so that rules we have to learn, and once we understand these rules, we can easily solve any example of set off and carry forward of losses. So let us come to the material and let us discuss the provisions. Okay, so see, first of all, देखो, this is the provision. Can you see the material? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, अब तक जो समझा है Yes, वो sir. समझ में आ गया? the material, sir. Yes, sir. Yes, I have given the same material at the Xerox center. You can collect it if you don't have. Okay. See, set up and carry forward of losses. Now, I have explained you that there is a three-step process. Okay. So three-step process में मैंने क्या बोला? Generally, it is permitted to adjust. एक ही हेड की इनकम है, वो एक ही हेड के लॉस के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। सेम वे अगर नहीं हुआ पाया तो वो हेड का लॉस आप दूसरे हेड की इनकम के सामने एडजस्ट कर सकते हो, इंटर हेड। ओके, और वहां पे भी नहीं हुआ है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट सी फॉर दैट देयर आर सर्टेन रूल्स or certain restriction or certain limitations that is put. See, these limitations we are supposed to understand. So let us read it from the material. That losses incurred during the previous year, अगर आपने previous year के अंदर कोई भी लॉस किए हैं तो that can be adjusted against the income during the same previous year, मतलब सेम ईयर की इनकम के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर वहां नहीं हो पाए तो दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड और एडजस्टेड अगेंस्ट द फ्यूचर इनकम एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब नेक्स्ट ईयर में की इनकम में ले जाके आप उसको एडजस्ट करो। So that is called carry forward. Yes, now whenever we do the set off and carry forward, see what are the provisions. देखो, I have summarized the provisions. Okay, otherwise this material may be in 8 to 10 pages, but it is in a tabular form. I have summarized to complete on time our syllabus. Okay, so for that you can forgive me. But see, last year मैंने पूरा detail किया था. But see, this year it is not possible, but all the points will get covered, so don't worry about it कि तुमने कहीं सीखवा नहीं मिले, you will learn. तो see, देखो, what point we are, first of all देखो, ये set off in the same year, यहाँ इंटरहेड और इंट्राहेड दोनों आ गए, और यही हमें समझना है। ये तो क्या है, सिर्फ टाइम लिमिट बताता है, ठीक है, और उसके लिए कुछ कंडीशन है वो समझते हैं। तो देखो, सपोज इफ यू आर हैविंग अ लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको लॉस है, तो what point we are supposed to keep in our mind कि house property loss can be set off against the income of any head. Any head मतलब सबसे पहले उसको हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के सामने ही एडजस्ट करोगे आप, और लेकिन वहां पे भी नहीं हो पाया। यस Sir, material is not visible properly. अदर स्टूडेंट हैव अ सेम प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. I You all can can see. see the problem.
the person who cannot see the material, please, once you exit and you enter again, you can see the same, because other students are not having the same problem. Okay, so you may have some Arun, internet for the error. Yes, any other person who is sir, having the same problem? Yes, no, sir. Okay, sir. I will you try once. you don't have a problem, na? Okay, so let us go ahead. Whosoever is the problem, please exit and enter again. You can see the same. Okay. Uh, okay. Oh, break my link. Okay, it's okay. Let us go ahead. So, see what we are supposed to do. See, five heads losses again with regarding the five head losses that we have to discuss. I hope that it is visible to all of you and you can see the same. Okay. So loss from the house property is there. Suppose if you are having a loss from the house property. Okay, first of all, what you will do? See, you have to adjust the loss against, first of all, income of the house property. And then after you are supposed to adjust that loss against the income of any other head. If the loss is not get absorbed, you can adjust against the income of any other head. But see what point we are supposed to keep in our mind while we determining the, or while we are setting the losses of the house property against the any other head income. So this is one point that we are supposed to remember, that uh, loss from the house property can be set up against the income of any other head. But see here, there is a limitation. You can see it is up to 2 lakh. Matlab you cannot adjust the loss from the house property with the income of any other head in the same year more than 2 lakh. Okay, for example, suppose see this is the situation. Okay, like I have a two houses, house one and house two. In house one, I have a profit of rupees 5 lakh. I have a profit of rupees 5 lakh. Okay. And in house two, I am having a loss of rupees 8 lakh. I am having a loss of 8 lakh. So first of all, see, whenever you do within head adjustment, you don't have to do anything. Okay. You can, you don't have to keep in your mind any other limit or any other thing. Okay. You can make the adjustment without any limit. So I have a two houses and see I have made the adjustment. 5 lakh के सामने मैंने 8 lakh adjust किया. Still I am having a 3 lakh rupees loss. I am having a 3 lakh rupees loss. Now say I am having a business income. Okay, I am having a business income in the same year. Okay, so business income is say rupees 5 lakh. So can I adjust this 3 lakh against the 5 lakh? So here this is the point that you can set up against the income of any other head, but up to rupees 2 lakh. Okay, so यहाँ पे ये 3 lakh you within head, there is no limit. Okay, but once you cross the head and you go in the other head, there is a limit. So this 5 lakh cannot be adjusted out. Sorry, this 3 lakh cannot be adjusted out of this 3 lakh. You have to adjust only 2 lakh loss. Okay, so I can say that my this year income, suppose you are having only two sources of income, house property and business. So 5 lakh here there was a loss that you have adjusted. Okay, now you are having a business income, against that you have set up the losses of house property. Okay, so you can say that my taxable business income is 3 lakh. Taxable income is a 3 lakh, not business income, total taxable income, because here I have considered both sources, house property as well as business. Okay, now you will ask me, sir, what we will do about, see, I had a business loss, sorry, house property loss of rupees 3 lakh, and I have made the adjustment up to 2 lakh only. So what I will do with this 1 lakh which is not adjusted? So that I will carry forward. Understood? So that I will carry forward. Okay, so that I will carry forward. Understood all of you what this first point says? Yes, yes, You sir. Understood. can set off the loss of the house property can be with any other head, but see here there is a limit that you cannot adjust the loss within with other head more than rupees 2 lakh. Okay, so if it is more than 2 lakh, you can carry forward. Now suppose if you are carry forwarding to the next year, in the next year also
see what we are supposed to keep in our mind. Loss of house property can be carried forward for how many number of years? So here it is mentioned that it can be carried forward for 8 years. Now you cannot carry forward the loss of the house property more than 8 years. Now see, suppose if you want to carry forward the loss, then is there any condition? So here there is a condition that filing of return of income within the due date, मतलब 31st October or 31st July, whatever date is applicable to you. Okay, before due date, you are supposed to file your return. And once you have filed the return, and in that return, you have shown that there is a loss, okay, and that you want to carry forward. So then and then you can carry forward. Suppose if you are declaring that I have a loss, but you have not filed the return of income, you cannot carry forward the loss to the next year. Okay, so you have to keep in your mind that see, loss of the house property can be set off against any other head income, but see, it can be adjusted up to 2 lakh only. Beyond 2 lakh, it cannot be carried forward. And if you want to, it can be carried forward up to 8 years. And once it is carried forward, if you want to carry forward, see, there is a requirement that you can carry forward this loss subject to condition that you should have filed the return of income. And in that particular return of income, you should have disclosed that loss. Okay, then and then you can carry forward. Okay. Now, the next loss is a business loss. I have discussed with you in the PGBP, business loss can be of two types. One is the normal business loss and speculative business loss. And this point already I have discussed in the PGBP. I have asked the example also on this is set up and carry forward in the internal exam also. So see, if you are having see here, business loss is written means what? It is a normal business loss. So if you are having a normal business loss, for that, what is the condition? देखो, नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम. कोई भी इनकम के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो एक्सेप्ट दी सैलरी इनकम. मतलब अगेंस्ट दी सैलरी इनकम यू कैन नॉट एडजस्ट दी बिजनेस लॉस. बिजनेस लॉस બીજી કોઈ પણ ઇન્કમ સાથે તમે એડજસ્ટ કરી શકો, but you cannot carry forward, cannot set off against the salary income. सैलरी इनकम के सामने नहीं, उसके अलावा की कोई भी इनकम है उसके सामने आप बिजनेस लॉस सेट ऑफ कर सकते हो. ओके, so suppose for example, suppose this is the situation. I am having a house one. I am having a 5 lakh rupees profit. Okay. House 2, I am having the 8 lakh rupees loss. I am having a business income. Okay, business loss, normal business loss. Normal business loss is say rupees 3 lakh. Normal business loss is say rupees 3 lakh. It is a normal business loss. And I am also doing a job and I am having a salary income, and salary income is say rupees 10 lakh. Salary income is say rupees 10 lakh. Now suppose in this situation, if it is asked to you that you determine the taxable business income, so what you will do? First of all, you will do the intra-head adjustment. तो देखो, मैं ये 5 लाख के 8 लाख की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने एडजस्ट करूंगा. तो यहाँ पे एडजस्ट करने पे मुझे क्या मिला? नेट आई हैव अ 3 lakh rupees loss. ठीक है, so I am having a 3 lakh rupees loss. Now I am also having the business loss of rupees 3 lakh. Okay, and I am having a salary income of rupees 10 lakh. Okay, now see, this house property loss can be set off against the salary income, but business loss cannot be set off. You have to compulsorily carry forward. तो देखो, यहां मैं इसको इसके सामने एडजस्ट करूंगा, लेकिन ये पूरा 3 लाख नहीं हो सकता. 3 लाख में से कितना हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी में? ओनली 2 lakh. हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना एडजस्ट हो सकता है? अभी पढ़ा है ना आपको, ओनली 2 lakh. So only 2 lakh can be adjusted. So see what will happen from this 10 lakh के सामने यहां से 2 lakh एडजस्ट हो जाएगा. तो सी my in house property loss, that is 2 lakh, that I will adjust against the salary income, that is rupees, salary income, that is rupees 10 lakh. So that I have adjusted. So my net taxable income for this year will be how much? My net taxable income for this year will be 8 lakh. And what about this loss?
So this I can carry forward to the next year. This business loss cannot be adjusted against the salary income. So these 3 lakh will be carry forward to the next year. What about this 1 lakh? 3 lakh में से 2 lakh adjust हुआ तो 1 lakh भी क्या होगा? 1 lakh of the house property loss that is also required to be carried forward. तो देखो हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी income, sorry, house property loss that will be carry forward and this will be also carry forward. मतलब total 4 લાખ રૂપિયા. Okay, business ના 3 લાખ અને house property ના 1 લાખ. That will be carry forwarded to the next year. Okay, but see here also there is a point that suppose if you want to carry forward the business loss, what point we are supposed to keep in our mind? See, business loss can be carry forward for 8 years. 8 साल तक आप carry forward कर सकते हो. लेकिन देखो, if you want to carry forward the loss, what is the mandatory? Business must be continue. Hello, what happened? Hello. क्यों कराયું છે આ કરજો All of you can listen properly. Okay, please pause. If possible, keep yourself mute unless I ask some question. You unmute and I give the answer and then you mute yourself. So it will not create the disturbance to any other people. Okay, and not to me also. So what I was discussing with you, yes, that I was discussing with you that if the business loss is that it can be carried forward for 8 years. And if you want to carry forward the loss, what is the requirement? Business must be continue. आपका business continue होना चाहिए. Suppose if you have closed down the business in the next year, you cannot carry forward the loss. And what is another requirement? Filing of return within the due date is mandatory. मतलब if you have filed the return, that is okay, but you have to file the return within due date. After due date, if you will file the return, if you may have shown the loss, see, you can file the belated return, no problem, but loss cannot be carried forward. If you want to carry forward the loss, you must have to file the return within the stipulated period of time, that is the due date of filing of return. Within that period only you are supposed to, within that period only, you are supposed to file your income tax return. Now see, then and then you can carry forward the business loss. Understood the second point, business loss? Any doubt? Yeah. Understood? Hello? Yes, sir. Okay, beta, okay. Now, see, business loss can be a speculative loss also. That what is speculative business loss that I have discussed with you in the PGBP. Okay, if you do the business, if you sell the goods without taking the delivery, that is called speculative business. Now, suppose if you are doing a speculative business or if you are having a speculative business loss, see, can you carry forward it or sorry, can you set off it? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, it can be set off only against the income of speculative business. मतलब speculative business के सामने ही speculative business की income के सामने ही speculative loss set off हो सकता है. It cannot be set off against the salary or against the house property, other sources or capital gain income. It can be set off only against one income, that is a speculative business income. उसके अलावा दूसरी कोई भी income के सामने ये loss आप carry forward, sorry, set off नहीं कर सकते. Set off नहीं कर पाए तो you have to do what you are supposed to carry forward to the next year. But see, you can see here there is a limit here 8 years, here 8 years. But here the limit for the speculative business loss is 8 years. And see, for speculative business loss, if you want to carry forward the losses, see, this is the requirement. You should have to file the return within due date of time. Okay, so due date of time के अंदर आपको return file करना है तो ही. Okay, for example, see, suppose this is the situation. Suppose I am having the house one. In house one, I am having the loss, sorry, income of rupees 5 lakh. Okay, in house two, I am having a loss of rupees 8 lakh. Okay, suppose I am having the business loss. A business loss है. Business loss is rupees 5 lakh. और ये business loss का मतलब ये है, ये normal business loss है. ठीक है, normal business loss.
मेरे को एक दूसरा मतलब मेरे दो बिजनेस है फ्रॉम बिजनेस वन, अभी मेरा दूसरा बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट है, ये भी नॉर्मल वाला है, यहाँ मेरे को 7 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, 7 लाख का नॉर्मल बिजनेस में प्रॉफिट है फ्रॉम बिजनेस टू। अभी एक मेरा तीसरा भी बिजनेस है, ओके, यहाँ मुझे लॉस होता है और दिस लॉस इज ₹8 लाख, ये लॉस कितना है? 8 लाख, ओके। लेकिन ये वाला मेरा बिजनेस कैसा है? स्पेक्यूलेटिव, ये मेरा स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है, वो मेरा थर्ड वाला बिजनेस है। और सी आई एम ऑल्सो डूइंग द जॉब एंड आई एम हैविंग द सैलरी इनकम say ₹10 lakh. And in this situation, if it is asked to you that you determine the taxable income of this assessee, अगर आपको इसका टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन करने के लिए बोला है, तो हाउ विल यू डिटरमाइन? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू दी इंट्राहेड एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे इंट्राहेड में कर दूंगा, तो यह 5 लाख के सामने 8 लाख करता हूं, तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का नेट लॉस क्या आता है? हाउस प्रॉपर्टी का नेट लॉस इज 3 लाख रुपीज, ओके, 3 लाख रुपीज हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। अभी देखो यहाँ पे ये बिजनेस लॉस है नॉर्मल वाला और ये बिजनेस प्रॉफिट है, तो ये दोनों में एडजस्टमेंट पॉसिबल है, ये दोनों नॉर्मल बिजनेस है, सो आई कैन डू द एडजस्टमेंट। देखो तो अगेंस्ट माय 7 लाख इनकम I can adjust the 5 lakh loss because both are the normal business. So I have made the adjustment. So against the 7 lakh, if the 5 lakh is adjusted, I will have a net profit of ₹2 lakh from the business. Okay. Now, see, this is also third business. But see, can I adjust this loss against this income? Answer is no. Okay, because this is the speculative business. And see, I don't have any other speculative income in this year. So I have to compulsorily carry forward this loss. Okay, so I have to file the return and I can carry forward this loss up to 4 years, not more than that. Okay, now see, I am having a salary income also. So salary income is ₹10 lakh. Okay, so if I want to determine the taxable income, what I will do? देखो यहां से ये 3 लाख लॉस है, लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी का है, मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो सकता है? 2 लाख, तो इसके सामने ये 2 लाख एडजस्ट होगा, तो मतलब यहाँ पे मेरे को सैलरी की कितनी इनकम बचेगी? मेरे पास 8 लाख, और मेरा बिजनेस का इनकम कितना है? 2 लाख। तो व्हाट इज माय टैक्सेबल बिजनेस इनकम? माय सॉरी टैक्सेबल इनकम, माय टैक्सेबल इनकम विल बी 10 लाख। एंड सी हाउ मच लॉस दैट आई विल कैरी फॉरवर्ड। सो दिस 8 लाख आई विल कैरी फॉरवर्ड प्लस यहाँ से 1 लाख, तीन में से दो ही एडजस्ट हुआ, तो दिस 1 लाख विल ऑल्सो गेट, तीन में से दो एडजस्ट कर दिया हमने, और देखो ये 1 लाख है दैट आई कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड। ओके, सो सी दिस इज सॉरी 1 लाख दैट आई कैन नॉट सेट ऑफ, सो दिस 1 लाख आई नीड टू कैरी फॉरवर्ड। तो टोटल कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? ये 1 लाख और ये 8 लाख, सो टोटल 9 लाख विल बी कैरी फॉरवर्डेड। ओके, so this is the point that speculative business loss can be set off only against the speculative business income. It cannot be set off against any other income. ओके, तो अगर आपके पास कोई साल में ये 4 साल नेक्स्ट आने वाले हैं, या तो फिर आपका एक करंट ईयर है, इसके अंदर कोई स्पेक्युलेटिव इनकम हो जाती है, उसके सामने लॉस आप एडजस्ट कर सकते हो। अदरवाइज 4 साल के बाद यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड, यू हैव टू फॉरगेट दैट लॉस। ओके, नाउ सी इफ देयर इज अ कैपिटल लॉस। ओके, तो कैपिटल लॉस से देखो, कैपिटल लॉस 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और वन कैन बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। नाउ सी व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है दैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। बट सी इफ यू आर हैविंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस, द लॉन्ग, देखो शॉर्ट टर्म है वो दोनों के सामने सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ। देखो यहाँ आगे का सेंटेंस नहीं लिखा है, बट यू शुड राइट डाउन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट दी लॉन्ग टर्म कैपिटल, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत लिखना मत लिखना मत लिखना, ठीक है। देखो यहाँ एक ही लिमिटेशन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, वो दोनों के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म की बात है, तो लॉन्ग टर्म के बारे में तो क्लियर है कि लॉन्ग टर्म कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट दी, जस्ट अ मिनट है, 2 મિનિટ જોઈ લો।
एक मिनट आप हो बेटा। Okay, you have to write down that long term. You write down here. लॉन्ग देखो आपने एक चीज तो पढ़ी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो दैट कैन बी सेट ऑफ against the short term capital loss as well as long term. But if you are having a long term capital loss, then long term capital loss cannot be set off against short term capital gain or any other income. It can be set off against the long term capital gain only. तो आपको क्या लिखना है? long term capital loss can be, you write down, long term capital loss can be set off only against the long term capital gain. Okay. और देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में क्या बोला है? इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब ये जो कैपिटल गेन का लॉस है ना, वो दूसरे कोई भी हेड की इनकम के सामने सेट नहीं हो सकता। ओके, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों में से कोई भी कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन का अगर कैपिटल लॉस है, कैपिटल गेन वाले चैप्टर का लॉस, तो ये लॉस आपको ध्यान रखना है कि अगर शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो दूसरे कोई हेड के सामने तो एडजस्ट होगा ही नहीं। अभी है तो आपको देखना है शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म गेन। But if there is a long term, you have to compulsorily adjust against the long term capital gain. Understood? दूसरे कोई हेड तो भूल जाओ, it will not be adjust against any other head. If it cannot be set off, it will be carry forward. Okay, but if there is a short term loss, it can be set off against short term capital gain as well as long term capital gain. But if there is a long term capital loss, it can be set off only against the long term. But see, it cannot be set off any against any other head, दूसरे कोई भी हेड के सामने you cannot adjust. Okay, आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट द पॉइंट। फॉर एग्जांपल, लाइक सपोज इन हाउस प्रॉपर्टी, you are having this situation. In house property, there is, you are having one house property. In the house property, you are having a income, say rupees 5 lakh. Okay, in house 2, you are having a loss of rupees. Just a minute. Sir, ક્લાસમાં છું. હા સર, ક્લાસમાં છું, કરું ફોન તમને ને મેં ચાલુ કર્યું છે તમારું કામ. હા, ઓકે સર. હા સર, હા સર, ઓકે સર. If suppose if you are having a house 1, in house 1 there is a 5 lakh profit. Okay, in house 2 you are having a 8 lakh loss. Okay, you are having a salary income, say rupees 10 lakh. You are having a business profit, say rupees 5 lakh. Okay, you are having a speculative business loss, say rupees 8 lakh. You are having a short-term capital loss. You are having a short-term capital loss, and short-term capital loss is, say, rupees 8 lakh. You are having a short-term capital gain also, and say that is rupees 10 lakh. And you are having a long-term capital gain, that is rupees 7 lakh. And you are also having another long-term capital loss, say that is rupees 9 lakh.
Now, in this situation, if it is asked to you that you determine the taxable business income of this assessee, so first of all, what we will do? We will do the इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। देखो इसको इसके साथ एडजस्ट हो सकता है। सो यहाँ पे मेरा नेट लॉस हो गया 3 लाख रुपीस हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, यहाँ पे सैलरी है तो सैलरी को मैं डायरेक्ट बाहर लिखता हूं 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपीस दैट आई राइट डाउन हियर। ओके, अभी देखो बिजनेस लॉस है, बिजनेस प्रॉफिट है और बिजनेस लॉस है। नाउ सी हियर इन दोनों बिजनेस है, बट वन इज अ स्पेक्युलेटिव, अनदर वन इज नॉन स्पेक्युलेटिव। सो दिस आई डोंट हैव एनी अदर स्पेक्युलेटिव इनकम, तो ये बिजनेस की इनकम है, मैं पॉजिटिव है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, पर इसको मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इट विल बी कैरी फॉरवर्ड बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर स्पेक्युलेटिव इनकम, और इसके लिए ये कहीं पे एडजस्ट नहीं हो सके ऐसा है, तो इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ। अभी देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 8 लाख रुपया, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हम करेंगे। ओके, और ये जो कैपिटल गेन वाले चैप्टर का जो भी लॉस है, इट कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर हेड दैट वी हैव टू कीप इन अवर माइंड। तो देखो यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 8 लाख रुपया, ये 8 लाख को मैं ये लॉस है, सॉरी ये 8 लाख है, ये लॉस है, इसको मैं इसके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो मैंने इसको 8 लाख पूरा एडजस्ट हो जाएगा। मतलब अभी मेरे पास जो बचेगा क्या, तो आई हैव 2 लाख रुपीस, और ये 2 लाख कहां से बचा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मेरा। ठीक है, now you can see here I am having a long term capital gain also, that is 7 lakh, and I am having a long term capital loss also, so that is at 9 lakh। तो ये दोनों के बीच में एडजस्टमेंट देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर रेट। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, देखो मेरे पास -2 लाख आएगा, एंड दैट इज अ लॉस, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। Now, can I adjust this with this? देखो long term capital loss can be set off against the long term capital gain, but देखो ये long term capital loss आया, ये long term capital loss आया, this long term capital loss I cannot set off against the short term capital gain, because long term can be set off only against the long term, short term can be set off against the short term as well as long term. Now see what will happen, what will be my taxable business income। तो देखो यहाँ पे मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और ये कैपिटल लॉन्ग टर्म का लॉस है। देखो आई डोंट हैव एनी अदर लॉन्ग टर्म इनकम, ओके, और आई कैन नॉट सेट ऑफ दी ये चैप्टर का लॉस में दूसरे किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, मतलब ये लॉन्ग टर्म वाला भी क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। यहाँ 3 लाख में से 1 लाख क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। तो ये यहाँ से मतलब अभी मेरे को कितना एडजस्ट करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे -2 लाख लॉस बचा मेरे पास। सो दिस आई कैन एडजस्ट अगेंस्ट दिस, सैलरी के सामने मैंने एडजस्ट कर दिया, मतलब यहाँ सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की कंबाइंड इनकम मेरी कितनी हो गई, 8 लाख रुपया। बिजनेस का प्रॉफिट 8 लाख रुपये, सॉरी 5 लाख रुपया है। ओके, तो ये 5 लाख मैंने लिख दिया बिजनेस का प्रॉफिट, ये सब हो गया, और इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरा हो गया 2 लाख। तो व्हाट इज माय टैक्सेबल बिजनेस इनकम, 8 न 5 13 15 लाख रुपया मेरी टैक्सेबल बिजनेस ये साल की हो गई। और हाउ मच लॉस आई विल कैरी फॉरवर्ड, तो कि 1 लाख हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, 5 लाख रुपया ये मेरा स्पेक्युलेटिव का 8 लाख रुपया लॉस है, तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का 8 लाख रुपया लॉस में कैरी फॉरवर्ड करूंगा, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस that I will of ₹2 lakh that I will carry forward to the next year. Okay, so my taxable income for this year will be 15 lakh, and this loss could not be adjusted, so that I will carry forward to the next year. तो इसको मैं next year carry forward करूंगा। समझ में आया आपको? हेलो? Yes, sir. सर Now, सर हाउस if you are प्रॉपर्टी का having लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एडजस्ट नहीं होगा 1 लाख? हाउस प्रॉपर्टी का क्या बोला, 2 लाख के ऊपर नहीं हो सकता। हाउस प्रॉपर्टी का 3 लाख लॉस है, उसको मैंने सैलरी के सामने यहाँ एडजस्ट किया। देखो ये सैलरी 10 लाख थी मेरी, और ये 10 लाख सैलरी के सामने हाउस प्रॉपर्टी का 2 ही लाख एडजस्ट हो सकता है, तो 2 लाख कर दिया, यहाँ 8 लाख हो गया मेरा सैलरी का नेट इनकम। और सैलरी में क्या लिमिट, आपको हाउस प्रॉपर्टी में क्या लिमिट बताया मैंने, कि इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यू कैन नॉट सेट ऑफ द लॉस मोर देन 2 लाख।
2 लाख के ऊपर है तो उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करो। समझ में आया? हेलो? यस ओके बेटा, ठीक है। सो दैट आई हैव एग्जिस्टेड। तो ये 2 लाख की लिमिट आपको हमेशा दिमाग में रख के चलना है, ठीक है? ऐसी गलती मत करना है एग्जाम में। तो 2 लाख का लिमिट आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखो 3 में से मैंने 2 एडजस्ट कर दिया, 1 लाख को सीधा कैरी फॉरवर्ड में ही रख दूंगा, मुझे पता है 2 लाख के ऊपर नहीं हो सकता, इसीलिए नहीं किया, ठीक है? तो ये हमने कर दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज द लॉस ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग द हॉर्स रेस। मतलब हॉर्स रेस की बात है। देखो ओविंग एंड मेंटेनिंग, अर्निंग इज अ डिफरेंट थिंग, अर्निंग इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब अगर आप ये हॉर्स रेसिस में पार्टिसिपेट करते हो, मतलब आप जुआ खेलते हो वहां पे हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी, हॉर्स रेसिस में जाके, और हॉर्स की रेस चलती है, वहां घोड़े पे पैसे लगाते हो और वहां से कमाया ना, दैट इज कॉल्ड विनिंग, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसिस। ये उसकी बात नहीं है। यहाँ किस चीज की बात की गई है? लॉस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग, मतलब यू आर द ऑर्गेनाइजर ऑफ द हॉर्स रेसिस। ओके, यू आर द ऑर्गेनाइजर ऑफ द हॉर्स रेसिस। और अगर वहां हॉर्स रेस को ऑर्गेनाइज किया, सब लोगों ने एक घोड़े पे लगाया और सबका वही घोड़ा जीता, तो आपको क्या होगा? तो जीता, सबको पैसा देना पड़ेगा, तो वो लोग जीत गए, और जिसने ऑर्गेनाइज किया होगा उसको लॉस होगा। तो अगर आपको ऐसा कोई लॉस हुआ है, देखो ये अदर सोर्सेज का लॉस है, ठीक है? अदर सोर्सेज का लॉस, अदर सोर्सेज की इनकम के सामने भी एडजस्ट हो सकता है, दूसरे हेड की इनकम के सामने भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अदर सोर्सेज में ये वाला लॉस है कि लॉस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग द रेसिस। हॉर्स रेसिस अगर आप मेंटेन कर रहे हो, मतलब चला रहे हो, और उसका लॉस है, तो आपको क्या करना है? अगर यही साल में ऐसी दूसरी कोई रेस में विनिंग हुआ आपका, तो उसके सामने आप एडजस्ट कर सकते हो। दूसरी रेस में आपको मतलब प्रॉफिट हुआ, तो ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस इसका जो लॉस है, उसको सिर्फ आप ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस के सामने ही एडजस्ट कर सकते हो, दूसरे हेड की इनकम के सामने नहीं। मतलब आपको क्या करना है? आपको देखना है ये साल में ओविंग एंड मेंटेनिंग में एक दो दो जगह पे आप रेस चला रहे हो, एक जगह पे प्रॉफिट हुआ, एक जगह पे लॉस हुआ, तो एक का प्रॉफिट दूसरे के सामने दूसरे का लॉस एडजस्ट हो सकता है। ओके, लेकिन अगर नेट लॉस आया तो यू कैन नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट द एनी अदर हेड इनकम, यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो आपको देखना है कि वही साल में मेरे को कोई प्रॉफिट है इसमें से, तो एडजस्ट करो, नहीं है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करो। और उसको कैरी फॉरवर्ड आप कितने साल तक कर सकते हो? ओनली फॉर 4 इयर्स। देखो स्पेक्युलेटिव का लॉस भी आप 4 साल तक कर सकते हो, और इसका भी लॉस जो है दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 इयर्स, नॉट मोर देन 4 इयर्स, ठीक है? Then last one, this we have discussed in very much detail. If you are having a unabsorbed depreciation, okay, unabsorbed depreciation क्या है? आपको मैंने पीजीबीपी में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो if you are having unabsorbed depreciation, मतलब business loss occurred because of the depreciation, that is called unabsorbed depreciation. Or if you are having unabsorbed depreciation, that can be set up अंडर एनी हेड, मतलब दूसरे कोई भी हेड की इनकम के सामने एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? हाँ, सैलरी के सामने नहीं होगा क्योंकि बिजनेस का लॉस है। तो बिजनेस का लॉस है, मतलब अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड, बट सी अल्टीमेटली अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है क्या? इट इज अ बिजनेस लॉस, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी, भले यहाँ लिखा है अगेंस्ट एनी अदर हेड, एनी अदर हेड मतलब एक्सेप्ट सैलरी। और सी ये अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर any number of years, okay, and there is no specific condition for filing of return। मतलब अगर आपने रिटर्न फाइल भी नहीं किया, देखो बाकी सभी पॉइंट में लिखा है you have to file the return, but see in this case if you have not filed the return, then also an absorbed depreciation can be carried forward for any number of years। देखो some notes are given here कि losses under the income from salary है। मैंने बोला कि सैलरी में जनरली लॉस नहीं होता ना, कोई लॉस था तो थोड़ा नौकरी करते है, तो जनरली सैलरी में लॉस नहीं होता है। अगर सैलरी में लॉस हुआ है तो दैट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, दैट यू मस्ट नो। सेकंड थिंग कि losses can be carry forwarded only if the return of income is filed before due date of return of income, okay, and losses can be carry forward by a same assessee who has incurred the loss। मतलब જેને લોસ કર્યા છે એ જ માણસ કેરી ફોરવર્ડ કરી શકે। ઓકે, સપોઝ તમે બિઝનેસ વેચી દીધો, બીજો માલિક બની ગયો, તો બીજો માણસ તમારા લોસ કેરી ફોરવર્ડ ના કરી શકે। ओके, देखो एक एग्जांपल, एकदम सिंपल सा एग्जांपल लिया है, उसके इससे डिफिकल्ट एग्जांपल तो मैंने करवाया, तो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया है। देखो
Mr. Rajesh has following income or and losses for the previous year 2023-24. देखो income and expenses are given up here. That income, देखो income from salary is given 6 lakh, income from house property is given 2 lakh. आपके पास दूसरा भी हाउस है जिसमें 3 लाख का आपको लॉस हुआ, ठीक है. Now business income is given 5 lakh और business loss is given 4 lakh, ठीक है. मतलब दोनों नॉर्मल बिजनेस है, यहाँ कुछ स्पेक्युलेटिव नहीं लिखा है, लेकिन स्पेक्युलेटिव लिखा है तो आपको केयर करना है कि स्पेक्युलेटिव लॉस कैन बी सेट अप अगेंस्ट द स्पेक्युलेटिव इनकम ओनली. ओके, अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है 1,50,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है 2,50,000. सो व्हाट वी विल डू, देखो पहले सबसे पहले आप करंट ईयर के लॉसेस एडजस्ट करोगे और बाकी का कैरी फॉरवर्ड करोगे. देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओके, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी is how much? Uh, 2 lakh. income from house property is how much? You can see here 2 lakh is a income from house property. Okay, और दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 3 लाख. ओके, तो ये 2 लाख के सामने 2 लाख तो एडजस्ट हो गया, ये तो विद इन हेड हुआ, ठीक है. विद इन हेड मैंने आपको बोला जितना करना है कर सकते हो. ओके, तो विद इन हेड आपने कर दिया. ओके, 2 लाख के सामने 3 लाख के सामने 2 लाख, मतलब ये 1 लाख का, देखो ये 1 लाख है, ये रिमेनिंग है. so that you have to set up against any other income. Okay, so that you have to set up against any other income. Okay, यहाँ प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं दिया है, लेकिन आप यू कैन सी हियर कि ये 2 लाख का बिजनेस ये है लॉस, और देखो ये 2 लाख के सामने 3 लाख एग्जिस्ट हो गया. ओके, तो ये 1 लाख ऐसा है दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेट अप अगेंस्ट एनी अदर इनकम. ये जो लिखा है गलत है. देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 और हाउस प्रॉपर्टी 2 इज अ लॉस. तो ये दोनों का अगर एडजस्टमेंट करूंगा तो हो जाएगा, और फिर मेरे पास नेट क्या बचेगा? 1 लाख रुपया हाउस प्रॉपर्टी का लॉस रहेगा. सो दिस आई कैन एडजस्ट अगेंस्ट एनी अदर हेड. ठीक है, तो यहाँ पे लिखना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख और यहाँ पे लिखोगे सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी दैट इज 3 लाख. तो यहाँ 3 लाख आप लिखोगे और बैलेंस लॉस कितना बचा? 1 लाख. so that you can carry forward to the that 1 लाख है that you can set up against any other head. अभी आप देखो कि आपको सैलरी की इनकम कितनी है? 6 लाख है. ओके, सैलरी की इनकम 6 लाख है. अभी हाउस प्रॉपर्टी में से आपको आपके पास ठीक है, इसको ये हम एग्जांपल यही रखते हैं, ठीक है. बट जस्ट अ मिनट है, एक 2 मिनट बेटा.
हेलो, यस, सॉरी सॉरी, देयर वाज अ कॉल। देखो आ एग्जांपल है यहाँ पे से बेटा, don't go with this solution. I will do my own solution because here something else is done. Okay, तो देखो यही सब हम हमारे हिसाब से सॉल्व करते हैं। ओके, जस्ट ए मिनट। क्या होगा देखो, same example we will solve in this way. Okay, in our way, whatever provision I have teach you according to, देखो you are having the income from salary. सैलरी 6 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी एक का लॉस है, एक में प्रॉफिट है, बिजनेस में लॉस है, बिजनेस में प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो क्या होगा देखो, पहले देखो, सपोज इफ यू आर सॉल्विंग द एग्जांपल इन द एग्जाम, तो ये एग्जांपल कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन हियर स्टेप 1। देखो एक्चुअली एग्जांपल ऐसे सॉल्व किया जाता है, यू अंडरस्टैंड। स्टेप 1, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ओके, एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इंट्राहेड एडजस्टमेंट दैट वी विल डू। ओके, तो हम क्या करेंगे देखो, इंट्राहेड एडजस्टमेंट ऐसे टेबल बना देंगे, पर्टिकुलर्स इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, तो दिस पहले में जितना इंट्राहेड करना है वो हम कर देंगे एडजस्टमेंट। ठीक है, तो स्टेप 1 इंट्राहेड एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे जहां लॉस नहीं है वहां कुछ नहीं करेंगे हम, जहां पे प्रॉफिट, देखो जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है तो दैट वी विल राइट डाउन डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, देखो यहाँ कोई लॉस नहीं है तो मैं इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देता हूँ, 6 लाख रुपीज। ठीक है, नाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम, जस्ट अ मिनट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो हाउस प्रॉपर्टी में क्या पोजीशन है, देखो ये 2 लाख की लिमिट जो है बराबर है, लेकिन वो जब दूसरे हेड में एडजस्ट करते हैं तब विद इन हेड एनी अमाउंट इज पॉसिबल। तो देखो हाउस प्रॉपर्टी में एक में 2 लाख का लॉस है, एक में 3 लाख का, एक में 2 लाख का प्रॉफिट है, एक में 3 लाख का लॉस है। तो मैं यहाँ दोनों लिखूंगा कि भाई ये 2 लाख का प्रॉफिट और ये 3 लाख का मेरा लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे नेट पोजीशन क्या है कि वो मुझे लिखना है। तो नेट पोजीशन देखो, यहाँ ये 2 लाख के सामने 3 लाख एडजस्ट हो गया, सो सी दिस इज 1 लाख रुपीज लॉस। ओके, सॉरी 1 लाख रुपीज लॉस, ये मेरा 1 लाख रुपया लॉस हुआ। ओके, नाउ ये 2 हो गया। ठीक है, बिजनेस इनकम, तो बिजनेस इनकम मेरी 2 बिजनेस इनकम है, 1 एंड 2। ओके, बिजनेस इनकम है तो सी बिजनेस इनकम एक में 5 लाख और एक में 4 लाख। तो यहाँ पे मैंने 5 लाख प्रॉफिट है और 4 लाख लॉस है, 4 लाख लॉस है, इसको मैंने एडजस्ट कर दिया, इसको एक बिजनेस के सामने बिजनेस, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, 1 लाख रुपया प्रॉफिट बचा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दी आई एम हैविंग अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,50,000 रुपया। ओके, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज प्रॉफिट 1,50,000 रुपया। ठीक है, and I am having a long-term capital loss that is 2,50,000 rupees. So that is 2,50,000 rupees. ठीक है, ये परिस्थिति है मेरी। तो देखो ये लॉस है मेरा, so long-term capital loss cannot be set off against the short-term capital gain. Okay, तो ये short-term capital gain के सामने ये तो एडजस्ट नहीं हो सकता, मतलब इसको मैं आउटर में लिख दूंगा, इसको मैं आउटर में लिख देता हूं। ठीक है,
और ये 2,50,000 ये भी आउटर में चला जाएगा, लेकिन दैट आई मस्ट नो दैट इट कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर हेड। ओके, ये मैंने इन फर्स्ट स्टेप कर दिया। अभी मुझे ये दूसरा वाला टेबल देखना है। ओके, ये दूसरा वाला टेबल ही देखना है। मतलब अभी स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा, तो स्टेप 2, in this I will write down interhead adjustment. Interhead adjustment. So if there is an interhead adjustment, so what I will do, देखो यहां भी इंटरहेड क्या किसके सामने पॉसिबल है, तो देखो ये 6 लाख है, प्रॉफिट है, यस। ये लॉस है कितना, हाउस प्रॉपर्टी का, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे कोई भी हेड के सामने एडजस्ट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना दूसरे हेड के सामने करते हैं तब 2 लाख आपको देखना है। तो ये 1 लाख मेरा लॉस है, दैट आई कैन सेट ऑफ अगेंस्ट द सैलरी इनकम, तो ये कर सकता हूं, ठीक है। फिर ये मेरा बिजनेस इनकम है 1 लाख रुपया। ओके, तो बिजनेस इनकम तो पॉजिटिव है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्टली आउटर में। शॉर्ट टर्म कैपिटल आउटर में जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है। तो यहाँ इंटर हेड एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं इनकम फ्रॉम से, यस सर ये 1 लाख है, उसको मतलब ये जो लॉस है अपना, उसको 1 लाख में से कैरी मतलब सेट ऑफ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना बेटा। હા એટલે ચાલે ને, એવું જરૂરી નથી ને કે 6 લાખ માંથી જ કરવાના। સમજો ને બેટા, શું કહે છે તું? હા એટલે આ 1 1 લાખ લાખ ની જે સામે, લોસ હા હા છે સમજી આપણે, ગયો, હા એ સમજી ગયો તારી વાત, એ કરી શકાય, એવું નથી કે સેલેરી સામે જ કરે। ઓકે, તો ઇનકમ ફ્રોમ सैलरी, देखो इनकम फ्रॉम सैलरी मेरा है ये 6 लाख रुपया है, ठीक है। ये 6 लाख रुपया इनकम फ्रॉम सैलरी हुआ। अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है, मेरा लॉस है। सो दिस आई कैन एडजस्ट, देखो ये इसके सामने मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। हाँ आपकी बात सही है कि ये इसके सामने भी करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अप टू असेसी। देखो इसको इसके साथ मैंने एडजस्ट कर दिया, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मेरी सैलरी की इनकम के साथ एडजस्ट हो गया, तो मेरा सैलरी का इनकम नेट कितना बन गया, 5 लाख, ठीक है। अभी इनकम फ्रॉम सैलरी इज 5 लाख। नाउ सी आई एम हैविंग अ बिजनेस इनकम, सो बिजनेस इनकम कितना है, 1 लाख, तो मैंने अपना बिजनेस इनकम बता दिया, ये बिजनेस इनकम मेरा हो गया 1 लाख, ठीक है। नाउ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,50,000 रुपया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 1,50,000, सो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये सब प्रॉफिट आ गया, और देखो ये इस किसी के साथ में एडजस्ट कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, आंसर इज नो। तो देखो यहाँ मेरा ये इंटरहेड एडजस्टमेंट पे ही मेरा मुझे ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा। तो माय ग्रॉस टोटल इनकम विल बी 5 + 1 6 लाख प्लस 1,50,000, तो 7,50,000 इज माय ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, और देखो व्हाट विल बी कैरी फॉरवर्ड, स्टेप 3 कैरी फॉरवर्ड। तो क्या कैरी फॉरवर्ड करूंगा मैं, तो कैरी फॉरवर्ड एक ही चीज होने वाली है, एंड दैट इज कैरी फॉरवर्ड क्या, दैट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, एंड दैट इज हाउ मच, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इज दैट इज 2,50,000, दैट विल बी सेट ऑफ, ठीक है। तो दैट विल बी सेट ऑफ, तो ये इतना होगा, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। देखो ये वो मेरा सॉल्यूशन वाले पे मत जाना, ये वाले पे जाना, ठीक है। और दिस आई कैन कैरी, यहाँ पे देखो हाउस प्रॉपर्टी में उसने कर दिया, लेकिन विद इन हेड में नहीं होता है, अब दूसरे हेड के सामने एडजस्ट करते हो तब वो 2 लाख की लिमिट लागू पड़ती है, ठीक है। Is it clear to everyone? So with this your chapter set up and carry forward of losses is over. Anyone has any doubt, any question regarding this? Hello? नो सर, नो, क्लियर। Okay. No, sir. Okay. So now, yes, beta. Any other? ठीक है, अभी एक दूसरा चैप्टर है, दैट इज द क्लबिंग ऑफ इनकम। अभी कंटिन्यू रखता हूं, ठीक है। हेलो, डू यू वांट अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स? हेलो, नो सर, नो। No, sir. No, sir. जस्ट ओके, यू डोंट वांट अ ब्रेक, तो लेट अस कंटिन्यू। ओके, तो लेट अस कंटिन्यू। एक छोटा सा चैप्टर है, दैट इज द क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, ये देखो मैंने ये भी आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है आगे। तो व्हेनेवर वी
कंप्यूट अवर टैक्सेबल बिजनेस इनकम। ओके, देखो जब आप टैक्सेबल बिजनेस इनकम कंप्यूट करते हो ऐसे 5 हेड की, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सी सम पीपल आर डूइंग सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इन अ दैट वे दैट दूसरे किसी की इनकम है, मतलब आपने ऐसे अरेंजमेंट किया है कि आपकी इनकम किसी और के हाथ में चली जाए। यू हैव मेड द अरेंजमेंट इन सच वे दैट आपकी इनकम है वो किसी और के हाथ में चली जाए एंड यू डोंट हैव टू पे द टैक्स ऑन दैट। तो ये इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 60 है उसने ऐसे ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किए कि अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है, ओके, तो इवन तो द इनकम इज अर्न बाय एनी अदर पर्सन, किसी और ने भी इनकम अर्न की है तो भी वो इनकम आपकी इनकम में ही गिनी जाएगी। तो सेक्शन 60 से लेके ये 64(2) तक इतने जो ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर रखे, इसमें ऐसा बोला गया है कि भले इनकम किसी और ने अर्न कर रखी है बट स्टिल इट इज ट्रीटेड एज योर इनकम एंड इट विल बी क्लब्ड इन योर इनकम, वो आपकी इनकम में ही गिना जाएगा। भले उसको किसी और ने रिसीव किया, किसी और के बैंक अकाउंट में आया है, बट स्टिल ये सेक्शन के अंदर बोला है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है, जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखे है, ऐसा कुछ किया है, तो इन दैट केस इवन दो द इनकम इज अर्न बाय समवन एल्स बट इट इज ट्रीटेड एज योर ओन इनकम एंड इट विल बी टैक्स्ड इन योर हैंड। ओके, ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे है कि जिसके अंदर किसी और ने अर्न की गई हुई इनकम आपकी इनकम में क्लब की जाती है। तो देखो क्लबिंग ऑफ इनकम, तो क्लबिंग ऑफ इनकम रिफर्स टू इंक्लूड द अदर पर्सन्स इनकम इन द टैक्स पेयर्स टोटल इनकम, मतलब किसी और की इनकम है उसको आपकी इनकम में ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन किया था जिसके थ्रू आप आपकी इनकम किसी और को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसा प्राइमरी ऐसा दिखता है कि इनकम किसी और ने रिसीव की है, लेकिन आपने अल्टीमेटली वो इनकम आपने ही अर्न की होगी, लेकिन आपने कुछ एडजस्टमेंट करके आपको अपने टैक्स बचाने के लिए अपनी आपकी इनकम किसी और को दे दी है। तो वो केस के अंदर उसकी इनकम भले उसने अर्न की है बट आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। लाइक सपोज मुझे इंटरेस्ट की इनकम आ रही है महीने की 5 लाख रुपया, तो मैं क्या सोचूंगा कि भाई मेरे बेटे का तो पैन नंबर नहीं ना, लेट मी डू वन थिंग, ओपन द बैंक अकाउंट एंड मेक द एफडी ऑन द नेम ऑफ माय सन। तो बैंक में इनकम उसकी उसके हाथ में इंटरेस्ट आएगा, भी उसका पैन नंबर ही नहीं है, तो देखो वो टैक्स नहीं भरेगा, मैं ऐसा सोचूंगा। लेकिन इनकम टैक्स एक का सेक्शन बोलता है कि अगर आपने आपके माइनर को इनकम ट्रांसफर की है तो माइनर की इनकम उसके पेरेंट की इनकम में क्लब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन अगर आपने कर रखे हैं तो दूसरे किसी की अर्न की हुई इनकम आपकी इनकम में क्लब होती है। तो देखो ये सेक्शन 60 क्या बोलता है, ये अलग अलग टाइप के ऐसे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। ये व्हाट सेक्शन 60 सेज, सपोज इफ यू ट्रांसफर इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, मतलब आप क्या करते असेट में से इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, और वो असेट आप किसी को ट्रांसफर नहीं करते, असेट अपने नाम पे रखते हो लेकिन उसकी इनकम किसी और को ट्रांसफर कर देते हो। लाइक सपोज समझ लो कि मेरे पास एक घर है और घर मैंने किराए पे दे रखा है, ठीक है, और घर का रेंट मुझे ही मिलना चाहिए बिकॉज आई एम ओनर, लेकिन मैंने ऐसा एडजस्टमेंट किया है कि वो किराएदार को बोला है कि मेरे भाड़ूआत को कि मेरे फ्रेंड का बैंक अकाउंट नंबर है, उसके अंदर तू रेंट डाल देना। तो रेंट अभी कौन रिसीव कर रहा है? माय फ्रेंड, एंड हु इज द ओनर ऑफ हाउस? आई एम द ओनर ऑफ हाउस। Now, even in this case, what is happening? You are transferring the income without transferring the asset. Asset transfer नहीं किया, आपने सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर दी। जैसे सपोज मेरे पास कोई डिबेंचर है, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मेरा बैंक अकाउंट नंबर मेरे फ्रेंड का दे दिया वो कंपनी को कि इंटरेस्ट मेरे फ्रेंड को देना, मुझे नहीं देना। तो आपने क्या किया, यू हैव ट्रांसफर द इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, असेट ट्रांसफर नहीं की, उसका इनकम ट्रांसफर कर दिया किसी और को। तो अगर ऐसा कुछ आप करते हो तो ये प्रोविजन क्या कहता है, इफ द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द असेट इज ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द असेट, इट इज क्लब इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। मतलब भले अपना घर का रेंट मैंने फ्रेंड के अकाउंट में डाला, भले मेरा इंटरेस्ट का इनकम मेरे फ्रेंड के अकाउंट में डाला, मेरी वाइफ के अकाउंट में डाला, सन के अकाउंट में डाला, तो भले वो लोग रिसीव करे, बट आई एम द ओनर ऑफ द असेट, आई हैव नॉट ट्रांसफर्ड द असेट, सो व्हाटएवर दे आर रिसीविंग इट विल बी क्लब्ड इन माय इनकम। तो अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है कि यू आर ट्रांसफरिंग द असेट विदाउट ट्रांसफर ऑफ द, जस्ट अ मिनट, जरा आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस तरीके से कर
तो धनश्री ऊंची आवाज करने बोल बोल करे चकली Okay. So what I was discussing with you, yes, yes, yes. So you have, if you have transferred the income without transferring asset, तो भले आपने इनकम ट्रांसफर कर दी लेकिन असेट ट्रांसफर नहीं की, तो जो भी इनकम है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। अभी कुछ लोगों ने इसके ऊपर का रास्ता निकाल दिया है कि चलो असेट भी ट्रांसफर कर देते हैं, મને वो તમને બીક લાગે ને કે ભાઈ અસેટ પાછી નહીં આપે તો તમે ટ્રાન્સફરનો એગ્રીમેન્ટ એવો કરો છો કે હું તને અસેટ બી ટ્રાન્સફર કરી દઉં છું, પણ આ અસેટ ટ્રાન્સફર કરીને ટ્રાન્ઝેક્શન રિવોકેબલ હશે, મતલબ હું જ્યારે ચાહું ત્યારે I can cancel this transfer and you have to give the asset back to me. That is called revocable transfer. So suppose if you have transferred the asset, if you have transferred the asset, if you have transferred the income, दोनों ट्रांसफर किया, लेकिन ट्रांसफर का टाइप कैसा रखा आपने, रिवोकेबल, मतलब आप जब चाहो तब उसको रिवोक कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, ऐसा ट्रांसफर किया आपने। तो इन दैट केस इवन पहले में क्या बोला कि असेट ट्रांसफर नहीं की, सिर्फ इनकम ट्रांसफर की। ओके, इन फर्स्ट केस व्हाट वी डिड, वी हैव ट्रांसफर द इनकम बट नॉट ट्रांसफर द असेट। तो इनकम आपके अंदर क्लब हो रही थी, अभी आपने ऊपर गए कि चलो इनकम के साथ असेट भी ट्रांसफर कर दे, लेकिन ट्रांसफर का नेचर में रिवोकेबल रखूंगा, तो जब चाहो तब इसको कैंसिल करो। अगर ऐसा भी किया है तो भले वो रिसीवर ने इनकम रिसीव की है, इट विल बी क्लब्ड इन योर इनकम। सो इफ इनकम फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ द असेट इज क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, आपके लिए ही टैक्सेबल हो गया। अभी तीसरा पॉइंट है इनकम ऑफ स्पाउस from the concern in which the individual has a substantial interest। देखो ये बहुत टिपिकल पॉइंट है कि सपोज कोई कंसर्न है, कंसर्न मतलब कंपनी है, फर्म है, एओपी है, बीओ है, जिसके अंदर कोई इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल का मतलब आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि 20% से ज्यादा होल्डिंग है, ठीक है, और वो कंसर्न से अगर आपको इनकम आ रही है, ओके, or income of a spouse from the concern in which the substantial individual is having a substantial interest, मतलब मेरे कंसर्न जिसके अंदर मेरा 20% से ज्यादा इंटरेस्ट है, उसमें से मेरी वाइफ इनकम अर्न कर रही है, तो भले मेरी वाइफ अर्न कर रही है बट इट विल बी क्लब्ड इन माय इनकम। फॉर एग्जांपल सी, सपोज आई एम हैविंग अ पार्टनरशिप फर्म, और वो पार्टनरशिप फर्म में मैं 50% का पार्टनर, ठीक है, 50% का पार्टनर हूं, तो मेरा वो पार्टनरशिप फर्म में क्या कहा जाएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। I will have a substantial interest. It is stated that I am having a substantial interest in the concern. Now, मैं वही पार्टनरशिप फर्म से मेरी वाइफ को इंटरेस्ट दे रहा हूं, सैलरी दे रहा हूं। So even though my wife is receiving that income and salary, no doubt it is allowed as a deduction in PGBP. पीजीबीपी में डिडक्शन मिलेगा उसका, क्योंकि वो सैलरी कमा रही है, मेरी फर्म से काम करके कमा रही है, बट लेकिन मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ऐसे कंसर्न से वो सैलरी लेके जा रही है, भले उसने रिसीव की बट इट विल बी क्लब्ड इन माय इनकम, कि वो इनकम भी मेरी इनकम में ऐड हो जाएगी। मतलब कोई भी कंसर्न के अंदर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और आपके स्पाउस को आप सैलरी दे रहे हो, तो स्पाउस जो भी आपके फर्म से ले जा रही है, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम। ओके, now see 64 subsection 1 clause 4, what it says, ये ट्रांसफर ऑफ असेट टू द स्पाउस। सपोज आप आपके स्पाउस को असेट ट्रांसफर कर देते हो, ओके, लेकिन वो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन से, देखो सपोज इफ यू आर ट्रांसफरिंग द असेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन। अभी एडिक्वेट कंसीडरेशन क्या कहोगे, लाइक सपोज प्रॉपर्टी इज देयर, हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 10 लाख रुपया और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चल रही है 8 लाख रुपया, और वो असेट आप आपकी वाइफ को 2 लाख रुपये में ट्रांसफर कर देते हो, प्रॉपर्टी एना नामे कर दी थी, इरिवोकेबल ट्रांसफर, रिवोकेबल नहीं इरिवोकेबल, ये तारी ज असेट લે, પણ તમે કેટલામાં આપી એને ઓછી કિંમતે વેચી, એનો मतलब તમે ઓછી કિંમતે વેચી, मतलब સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યू से भी कम प्राइस में इफ यू हैव सोल्ड द असेट, then it is called, या तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू, अगर मूवेबल असेट है तो फेयर मार्केट वैल्यू से कम से अपने असेट ट्रांसफर किए,
then it is treated that it is the ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। और वो असेट आप किसको ट्रांसफर करते हो? आपके स्पाउस को, मतलब हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को ट्रांसफर करती है, लेकिन फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। और वो असेट में से अगर इनकम जनरेट हुई तो इवन दो इट इज रिसीव्ड बाय द वाइफ, इट विल बी ट्रीटेड एज माय इनकम। सपोज मैंने एक घर है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख थी, वो घर मैंने 1 लाख में मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर दी, ठीक है। अभी वो घर उसने रेंट पे दिया और उसको हर महीने 10,000 का रेंट आता है, मतलब 1,20,000 साल का रेंट आया। तो लॉजिकली सी इज द ओनर, तो इट शुड बी ट्रीटेड एज हर इनकम, but I have transferred the asset for inadequate consideration, so that 1,20,000, even though she is the owner, but that 1,20,000 will be clubbed in my income because I have transferred the asset for an inadequate consideration to the spouse. Okay, कोई भी asset आप inadequate consideration मतलब मूवेबल asset है तो फेयर मार्केट वैल्यू से कम, और अगर इमूवेबल असेट है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस पे अगर आपने स्पाउस को ट्रांसफर किया और वो असेट में से कोई इनकम जनरेट हुई, तो वट एवर इनकम इज गेट जनरेटेड दैट इज ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर एंड नॉट ऑफ द पर्सन हु इज रिसीविंग द इनकम। ओके, सेम वे अगर आप बोलो वाइफ को करने में प्रॉब्लम है, चलो मेरे बेटे की वाइफ को कर देता हूं, तो अगर आप सन की वाइफ को भी ऐसे इनएडिक्वेट एसेट से कंसीडरेशन से ट्रांसफर करते हो, देखो इनकम फ्रॉम द असेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द सन्स वाइफ without adequate consideration is clubbed in the hands of transferor। सपोज मैं अपने बेटे की वाइफ को असेट ट्रांसफर कर देता हूं और उसको इनकम जनरेट होती है, लेकिन वो असेट मैंने कैसे ट्रांसफर की? फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस से या तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस से। इफ आई हैव ट्रांसफर द असेट इट इज ट्रीटेड एज see whatever income is earned by my son's wife it will be clubbed in my income। okay, तो अगर आपकी वाइफ को या सन्स की वाइफ को if you transfer the asset for inadequate consideration and income is generated by any of them, it will be clubbed in the income of the transferer। okay, now income of the minor child, देखो अगर आपका माइनर चाइल्ड कोई इनकम कमा रहा है, okay, तो that minor child income is clubbed in the income of the parent whose income excluding this minor income is higher। okay, मतलब देखो अगर माइनर चाइल्ड, देखो माइनर चाइल्ड की कौन सी वाली इनकम विच इज अर्न बाय हिम, माइनर चाइल्ड ने इनकम अर्न की है, अगर उसने अपनी स्किल से अर्न की गई इनकम है तो वो क्लब नहीं होगी। लेकिन माइनर चाइल्ड को ये कैसी इनकम आ रही है? पैसिव इनकम, लाइक माइनर चाइल्ड के नाम पे प्रॉपर्टी है, माइनर चाइल्ड के नाम पे एफडी है, माइनर चाइल्ड के नाम पे शेयर है, तो शेयर का डिविडेंड आया, प्रॉपर्टी का रेंट आया, एफडी का इंटरेस्ट आया, ये सब पैसिव इनकम है। इफ माइनर चाइल्ड इज अर्निंग, तो वो माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम है उसके पेरेंट की इनकम में ऐड होगा। कौन से वाले पेरेंट, मदर या फादर? तो मदर और फादर की ये माइनर की इनकम ऐड करने से पहले की इनकम जिसकी ज्यादा इनकम है उसकी इनकम में ये माइनर की इनकम क्लब होगी। लेकिन कौन सी वाली माइनर की इनकम? ये पैसिव इनकम। अगर माइनर इज डूइंग एक्टिवली सम वर्क, सपोज माय डॉटर इज वर्किंग इन द टीवी सीरियल एंड शी इज अर्निंग सम इनकम, देन इट इज नॉट क्लब इन माय इनकम, वो टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, अगर माइनर चाइल्ड इज वर्किंग और सी इज आर्टिस्ट और डूइंग समथिंग और उसका पेंटिंग बिचा उसको इनकम मिली, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल इन माय इनकम, वो टैक्सेबल ही नहीं होगा। हाँ, और एक दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी माइनर चाइल्ड की इनकम अब आप कोई भी पेरेंट की इनकम में ऐड करते हो तो उसमें से 1500 तक एग्जम्पशन है, मतलब 1500 तक ऐड नहीं करना है। सपोज मेरा बेटा है उसको, और वो माइनर है, उसने 30,000 रुपया साल का इंटरेस्ट अर्न किया, तो और मेरे और मेरी वाइफ की इनकम में से अगर कंपेयर करते हो मेरी इनकम ज्यादा है, तो 30,000 मेरी इनकम में ऐड होगा, लेकिन पूरा 30 नहीं, उसमें से 1500 लेस करना है, मतलब 27,500 ओनली विल बी एडेड इन माय इनकम। ठीक है, और द लास्ट पॉइंट इज दैट कि इनकम ऑफ द असेट ऑफ द एचयूएफ, इनकम ऑफ असेट ट्रांसफर टू एचयूएफ। देखो अगर आपने आपका एक एचयूएफ क्रिएट कर रखा है और आपकी पर्सनल असेट आप एचयूएफ को ट्रांसफर कर देते हो, तो भले वो इनकम एचयूएफ रिसीव कर रहा है, बट स्टिल it will not be treated as income of HUF, it will be treated as your income and it will be taxable in your hand। Okay, the income arising from the asset transferred to the HUF by member without adequate consideration। Okay, suppose समझ लो मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे बेटे ने और बेटी ने, चारों ने मिलकर एक HUF क्रिएट किया। अभी HUF अपनी इनकम से कोई नई प्रॉपर्टी बाय करता है तो उसकी इनकम HUF के लिए टैक्सेबल होगा, लेकिन मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो मैं HUF के नाम पे ट्रांसफर करता हूँ, और वो भी कैसे? इनएडिक्वेट कंसीडरेशन से।
तो भले वो इनकम एचयूएफ रिसीव कर रहा है, बट इट विल बी क्लब्ड इन माय इनकम एंड नॉट इन द इनकम ऑफ एचयूएफ। ओके, तो लेकिन कब? व्हेन यू हैव ट्रांसफर द एसेट फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। ठीक है, तो देखो, और ये क्लबिंग क्यों करना चाहिए? तो क्योंकि ये सब अखतरे लोग करते हैं, ये सभी ट्रिक यूज करते हैं टू सेव द टैक्स। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि ऐसी ऐसी ट्रिक यूज करते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर ऐसा कुछ भी आपने किया है तो भले आपने एसेट ट्रांसफर की, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, इनकम ट्रांसफर की, लेकिन वो भले ट्रांसफर करते हो वो आपकी इनकम में ही ऐड किया जाएगा। मतलब क्लबिंग क्या है? इट इज द एंटी टैक्स अवॉइडेंस। मतलब कोई टैक्स अवॉइडेंस की प्लानिंग कर रहा है, उसको रोकने के लिए क्लबिंग है। ओके, now see, if income is already taxable in other person's hand, it will not be taxable or clubbed। मतलब सपोज समझ लो कोई इनकम है, उस पे वो टैक्स भर रहा है, ओके, तो आपकी इनकम में क्लब नहीं होगा। कैसे? लाइक सपोज मेरी वाइफ की इनकम 5 लाख ऑलरेडी है, और उसको मैंने कोई असेट ट्रांसफर की है, और उस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से, और वो असेट से इनकम आई, लेकिन उसकी ऑलरेडी दूसरी इनकम भी 5 लाख है, और वो 2 लाख रुपया सपोज उसको इंटरेस्ट की इनकम आई, तो इंटरेस्ट उसके हाथ में भी टैक्सेबल ही होने वाला है, तो मेरे को क्लब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन देखो उसकी इनकम बहुत कम है, एग्जम्पशन लिमिट से भी कम, और उसने वो इंटरेस्ट रिसीव किया, तो मेरा प्लानिंग सीधा पता चलता है कि मैंने ऐसे इसीलिए प्लानिंग किया कि मेरी वाइफ उस पर टैक्स ना भरे। अगर मेरी वाइफ उस पर टैक्स नहीं भर रही है, मतलब वो इनकम उस सामने वाले के लिए टैक्सेबल नहीं बन रही है, मतलब इट विल बी क्लब्ड इन योर इनकम। सपोज सामने वाला टैक्स भर रहा है उस पे, तो देयर इज नो नीड टू क्लब इन योर इनकम, बिकॉज़ यू हैव टू प्रूव दैट। Suppose assessing officer asks you that why you have not clubbed, you have to prove that other person has already paid the tax on that, so I have not clubbed the same। Okay, कभी देखो, और अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन से अगर आपने असेट ट्रांसफर की है, सपोज आई हैव ट्रांसफर द असेट टू माय वाइफ, ओके, बट फॉर दैट व्हाटएवर इज द मार्केट प्राइस, दैट मार्केट प्राइस आई हैव चार्ज फ्रॉम हर, और उसके बाद उसको असेट दे दी है, तो वो इनकम मेरे में क्लब नहीं होगी। व्हेन इट इज क्लब, व्हेन द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, बट इफ क्लबिंग इज नॉट अप्लाई इफ द ट्रांसफर ऑफ असेट फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। ओके, और એક્ઝમ્પ્ટેડ ઇનકમ જેના પર ટેક્સ જ નથી લાખવાનો, સપોઝ મારી એગ્રીકલ્ચર ઇનકમ છે, હું મારા છોકરાના ખાતામાં નાખું છું, तो इट इज नॉट क्लब, क्योंकि उसमें मेरे हाथ में भी आने के बाद भी टैक्स नहीं लगने वाला है। जो एग्जम्प्टेड इनकम है वो क्लब नहीं होती है। ठीक है, देखो आपको ये एक छोटा सा सम दिया है कि मिस्टर अर्जुन हैज द फॉलोइंग इनकम एंड अ ट्रांजैक्शन फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24। देखो उसका इनकम फ्रॉम सैलरी, ये अर्जुन का खुद का है। इनकम फ्रॉम द असेट गिफ्टेड टू वाइफ, देखो असेट गिफ्टेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को कोई असेट गिफ्ट कर रखी है, और देखो ये वाइफ, ये इनकम किसकी है? अर्जुन की वाइफ की, अर्जुन की नहीं है। ठीक है, तो ये अर्जुन की इनकम में क्लब होगा, क्योंकि देखो गिफ्ट का मतलब क्या, उसने मुफ्त में वाइफ को दिया है इनकम असेट। ओके, और उसमें से वाइफ को 1,20,000 का इनकम हुआ, तो दिस विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर अर्जुन। ठीक है, सेम वे इनकम फ्रॉम द असेट ट्रांसफर टू एचयूएफ विदाउट कंसीडरेशन, तो ये इनकम किसकी? एचयूएफ की है, तो ये इनकम भी अर्जुन की इनकम गिनी जाएगी और उसको इसमें क्लब होगी। देखो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट 50,000, तो 50,000 की इनकम भी अर्जुन की इनकम में ही ऐड होगा, लेकिन 50,000 में से कितना ऐड लेस करना है? 1,500। ओके, अभी देखो इनकम ऑफ द माइनर डॉटर फ्रॉम द बिजनेस, देखो बिजनेस से अर्न किया है माइनर डॉटर ने, तो वो माइनर डॉटर की इनकम है, ओके, फ्रॉम बिजनेस। मतलब देखो माइनर कैन नॉट डू द बिजनेस। ओके, मतलब आपने क्या किया? बिजनेस माइनर के नाम पे करा रहे हो, उसका जो स्किल वाला काम है, जैसे टीवी में काम कर रही है, पेंटिंग कर रही है, बिजनेस इनकम विल ऑलवेज क्लब इन द इनकम ऑफ पेरेंट। तो माइनर की, ये डॉटर की भी इनकम है, वो फादर में ऐड होगी 1,500 लेस करने के बाद। ओके, एक माइनर चाइल्ड है इन्वेस्टमेंट, और देखो अब यहाँ बोला नहीं कि उसके 2 चिल्ड्रन है, तो हम ऐसा ही समझते कि उसका एक ही चाइल्ड है, तो दोनों का टोटल करके उसमें से 1,500 लेस कर देने का। ठीक है, ઇન્કમ અર્ન બાય ધ વાઇફ ફ્રોમ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ધ ગિફ્ટેડ અમાઉન્ટ, તમે એને કોઈક અમાઉન્ટ ગિફ્ટ કર્યું જેના પર વાઇફે ઇન્કમ અર્ન કરી 40,000 રૂપિયા। ठीक है, तो देखो यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर कर रहे हो आप, तो ये क्लब नहीं होगा मेरे हिसाब से। देख लेते हैं, और इनकम फ्रॉम द रिवोकेबल ट्रांसफर प्रॉपर्टी, तो अगर आपने रिवोकेबल ट्रांसफर किया तो इनकम 1,00,000 ऐड होगी। देखो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि इनकम फ्रॉम द असेट गिफ्टेड टू वाइफ 1,20,000 is club in the hands of Mr. Arjun। फिर दूसरा है इनकम फ्रॉम दी earned by the wife from the investment 40,000 gifted to her is also club in the
अर्जुन एंड इट अराइज फ्रॉम द इनकम ऑफ ट्रांसफर्ड असेट। हाँ देखो, आपने ये गिफ्ट किया है, ये वाला पॉइंट ये थोड़ा टिपिकल मुझे लग रहा था, लेकिन यहाँ पे भी क्लियर है कि आपने 40,000 का अल्टीमेटली कैश इज ऑल्सो व्हाट असेट। आपने किसी को कैश दे दिया और बोला अभी उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया उससे और वहां से इनकम अर्न कर रहा है। ओके, तो वाइफ को दिया है आपने, तो उधर से उसको इनकम हुई, दैट इज ऑल्सो क्लब। हाँ, उस पे वो टैक्स भर देती है तो आपके लिए क्लब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो इट विल बी टैक्सेबल, तो ये भी टैक्सेबल होगा। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम द असेट ट्रांसफर टू एचयूएफ, तो एचयूएफ को भी जो ट्रांसफर किया असेट वो तो आप में क्लब होता है, आपको मैंने अभी बताया। अभी इनकम फ्रॉम द माइनर चाइल्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट 50,000, वो भी अर्जुन में क्लब होगा, बट उसमें से 1500 का एग्जाम्पशन अलग होगा, मतलब नेट कितना होगा 50,000 माइनस 1500। और इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड डॉटर फ्रॉम द बिजनेस तो 80,000, तो यहाँ पे क्या 80,000, और यहाँ कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि बिजनेस इनकम है। ओके, वो पैसिव इनकम आ रही है ना, पैसिव इनकम, तो उसमें क्लब होता है। बिजनेस इनकम में से 1500 का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। और दूसरा एक ऐसा भी एग्जाम्पशन कर सकते हैं कि भाई एक बार एग्जाम्पशन ले लिया 1500 का, दोनों अगर माइनर चाइल्ड अलग अलग होते तो ऐसा हो सकता था कि, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि दोनों माइनर चाइल्ड एक ही है। ओके, तो इसीलिए एक बार 1500 का मिला, हर एक इनकम में नहीं, टोटल इनकम में से 1500 का डिडक्शन मिलता है, एग्जाम्पशन मिलता है। और देखो, रिवोकेबल ट्रांसफर वाला इनकम भी आप में क्लब होगा। तो अर्जुन की इनकम क्या होगी, देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी 7 लाख, इनकम फ्रॉम असेट गिफ्टेड टू वाइफ वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। इनकम फ्रॉम दी 1,20,000, मतलब ये 1,20,000 ये ऐड होगा। ठीक है, इनकम अर्न बाय द वाइफ फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गिफ्टेड अमाउंट, ये भी इसमें ऐड होगा। इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर असेट ट्रांसफर टू एचयूएफ, ये भी अर्जुन की इनकम गिनी जाएगी। माइनर चाइल्ड आफ्टर एग्जाम्पशन 1500, ये भी ऐड होगा। माइनर चाइल्ड की जो बिजनेस इनकम है पूरी टैक्सेबल होगी। और रिवोकेबल ट्रांसफर का जो इनकम है 1 लाख, वो भी ऐड होगा। और दिस टोटल इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अर्जुन। देखो, यहाँ आपको कुछ ट्रिकी पॉइंट एग्जाम में आ सकते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक पॉइंट ऐसा दिया है कि इनकम फ्रॉम दी इररिवोकेबल ट्रांसफर, इररिवोकेबल ट्रांसफर किया तो वो इनकम क्लब नहीं होगी। ट्रांसफर कैसा होना चाहिए, रिवोकेबल, एग्जाम में ऐसा आ सकता है। फिर आपको ऐसा बोला है कि इनकम फ्रॉम दी ऑफ दी माइनर चाइल्ड फ्रॉम दी स्किल्ड वर्क, तो वो क्लब नहीं होगा। फिर आपको ऐसा बोला गया है कि इनकम फ्रॉम दी असेट ट्रांसफर विद द एडिक्वेट कंसीडरेशन, तो वो क्लब नहीं होगा। यहाँ पॉजिटिवली सब लिख दिया है, लेकिन नेगेटिव कुछ आ सकता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐड नहीं होगा। क्या ऐड होगा आपको मैंने बता दिया, लेकिन क्या ऐड नहीं होगा वो भी आपका, सपोज आपको बोला एग्रीकल्चर इनकम, तो आपको यहाँ बताया कि एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट गेट क्लब। इफ असेट एडिक्वेट कंसीडरेशन से ट्रांसफर की है तो वो क्लब नहीं होगी, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर ऐसा बोला है कि इनकम on which the wife has already paid the tax, so that is not club in the income. Okay, एक एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, आपको वाइफ की भी इनकम दे रखी है कि वो भी जॉब कर रही है और उसका इनकम 10 लाख दिया है सैलरी का, और आपका सैलरी का इनकम दिया है 5 लाख। ओके, और फिर दोनों का टोटल करते हो तो आपको पता चलता है कि माइनर की चाइल्ड की इनकम ऐड करने से पहले वाइफ की इनकम ज्यादा है, तो वो पूरी इनकम कहाँ क्लब होगी, वाइफ की इनकम में, माइनर की इनकम आपकी इनकम में नहीं ऐड होगी। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिकी एग्जांपल आ सकता है, अदरवाइज ऐसा सिंपल एग्जांपल आएगा। मतलब क्या नहीं होगा, ये देखो यहाँ लिखे है पॉइंट, ये इसमें से कुछ यहाँ लिख दिया तो यू मस्ट नो। और आपको ये भी पता है कि एडिकेट कंसीडरेशन से किया है तो क्लब नहीं होगा, इररिवोकेबल ट्रांसफर है तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट यहाँ आए गए तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्लब नहीं होगा। क्या क्लब होगा वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, so this is the chapter in relation to the set off and carry forward of clubbing of income. I hope that you have understood this also. You Sir. don't have any doubt. Yes. सर इन दिस थियरी वो लिखा है 1500 पर चाइल्ड। per child. હા એટલે કે જેટલા બી ચાઇલ્ડ હોય એના પર 1500 એક્ઝમ્પશન। હા બેટા, પણ Fine. અહીંયા શું છે, એટલે આપણે અહીંયા આ સમમાં એવું એઝ્યુમ કર્યું કે બેવ ચાઇલ્ડ છે ને એ એક જ છે। અહીંયા ડોટર પહેલામાં ચાઇલ્ડ લખ્યું છે અને બીજામાં ડોટર લખ્યું છે, બરાબર। એટલે આપણે એવું ના વિચારીએ કે આપણે એવું જ વિચારીએ કે ભાઈ આ બીજું પણ છે ને એ એક જ બાળક છે, એને એક જ બાળક છે, એટલે એવું જ આપણે એઝ્યુમ કર્યું। એટલે 1500 નું એક્ઝમ્પશન એકવાર આપી દીધું, અહીંયાથી ફરી નહીં આપીએ। दिस इज द लॉजिक। ओके 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 है ना। अगर ऐसा बोला है कि माइनर सन और माइनर डॉटर दोनों अलग अलग दिए तो दोनों में से 1500 का डिडक्शन मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन यहाँ बोला है माइनर चाइल्ड और यहाँ पे माइनर डॉटर बोला है, तो वी अज्यूम दैट दैट इज सेम पर्सन। एक बार अच्छा आपने એટલે 1500 का बिजनेस
બિઝનેસ છે એટલે એક્ઝમ્પશન બિઝનેસ છે એટલે નહીં, બિઝનેસ છે એટલા માટે નહીં બેટા. ઓકે કોઈ પણ માઇનર ચાઇલ્ડની ઇન્કમ તમારી ઇન્કમમાં એડ થાય તો 1500 પર ચાઇલ્ડ લેસ થાય. ઓકે, તો અહીંયા આપણે કઈ એઝમ્પશન પર ગયા છે કેમ એક જ વાર 1500 લેસ કરે? એનું કારણ એક જ છે કે અહીંયા આપણે એવું માન્યું કે બે ઇન્કમ છે એ સેમ માઇનર ચાઇલ્ડની જ છે. ઓકે, એટલે એકવાર 1500 નું આપ્યું એટલે ફરીવાર આપણે નહીં આપીએ. So this is the logic. Okay. Any other doubt? Any other question? Hello. सर जो ये पॉइंट लिखा है कि इसमें जो माइनर की इनकम होगी वो हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, तो कौन कौन सी होती है माइनर की इनकम जो हम लोग एक्सक्लूड करते हैं? वो मैंने आपको बताया बेटा, स्किल बेस्ड इनकम होती है. स्किल बेस्ड, स्किल बेस्ड मतलब मैंने आपको बताया कोई पेंटिंग करता है या कोई टीवी सीरियल में काम करता है या फिर कोई लेबर वर्क करता है. ओके, ऐसा मतलब उसने अपना बॉडी का यूज करके, अपने माइंड का यूज करके कुछ कमाया है. तो अभी देखो बिजनेस तो माइनर कर ही नहीं सकता. हमारे इंडियन लोग भी बोलता है कि माइनर कैन नॉट डू द बिजनेस, और माइनर बिजनेस इनकम कमा रहा है. तो बिजनेस इनकम એટલે बहुत क्लियर છે કે તમે તમારો જે બિઝનેસ તમારા બાળકના નામે કરી રહ્યા છો. ઓકે, એટલા માટે बिजनेस इनकम हमेशा क्लब થશે. अदरवाइज उसने अगर कोई स्किल वर्क और मैन्युअल वर्क किया है, ऐसे वर्ड है स्किल वर्क और मैन्युअल वर्क, तो स्किल वर्क और मैन्युअल वर्क की अगर बच्चे की इनकम है तो दैट विल नॉट बी क्लब इन द इनकम ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स. बिकॉज, और मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई कोई बेटी है वो सीरियल में काम कर रही है, या तो फिर उसने कुछ पेंटिंग किया, वो स्किल वर्क हुआ, या तो फिर मैन्युअल वर्क किया, मतलब कोई सपोज समझ लो उसने एम्ब्रॉयडरी काम किया, दैट इज अ मैन्युअल वर्क, या तो फिर उसने कुछ छोटा बड़ा बड़ा घर पे मैन्युअल काम किया, तो वो इनकम क्लब नहीं होती. ठीक है, तो समझ सर में हम आया? उसको फिर यहाँ पे कंसिडर करेंगे और बाद में माइनस नहीं कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, उसको क्लब ही नहीं करना है. वो माइनर की इनकम है, वो माइनर को मोटिवेट भी करना चाहिए. ના જે નાનું છોકરું સમર ટીવીમાં કામ કરે છે, ઓકે, હવે એની પાસેથી ગવર્નમેન્ટ ટેક્સ લેવાનું ચાલુ કરી દેશે તો નાના છોકરું ડીમોટિવેટ થઈ જશે. એના પાસેથી ટેક્સ જ નહીં લેવાનો, એવી ઇન્કમ કોઈની ઇન્કમમાં એડ નહીં થાય. ठीक है सर. समझ में आया? तो वो इनकम हाँ, सर. ऐसी है जो स्किलफुल काम करता है, तो वो इनकम पेरेंट की इनकम में ऐड नहीं करने की. माइनर की इनकम पेरेंट में क्यों ऐड करने की? माइनर के नाम पे आप बिजनेस कर रहे हो, बोलता है माइनर रन कर रहा है, तो उसकी इनकम यहाँ क्लब हो जाएगी. माइनर के नाम पे एफडी रख दी, माइनर के नाम पे असेट दे दी, तो यहाँ आपका इंटेंशन बहुत क्लियरली दिखता है कि आपको उसकी इनकम पे टैक्स, आपको आपकी इनकम पे टैक्स नहीं भरना है, इसीलिए सब माइनर के नाम पे कर रखा है. तो माइनर की इनकम आइदर ऑफ द पेरेंट में ऐड हो जाएगी. लेकिन माइनर कुछ कर रहा है और कमा रहा है, उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा. तो किसी की भी पेरेंट में, मतलब आइदर पेरेंट और मतलब मदर और फादर दोनों में से किसी की इनकम में ऐड नहीं होगा. ठीक है, इज इट क्लियर? ક્લિયર एनी સર क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? સર એક ક્વેશ્ચન હમણાં તમે એવું કીધું ને કે માઇનર ની પેસિવ ઇન્કમ હોય, પેસિવ સ્કિલ થી એક ઇન્કમ અર્ન કરે તો એક ક્લબ થઈ જશે આઈધર ઓફ પેરેન્ટ. હવે સપોઝ એમાં ફાધર છે, એની ઇન્કમ છે 5 લાખ